Yeah. Welcome to MDM classes. We are in Business Economics Macro 2. चैप्टर 1 अपन करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 का विच इज़ मनी, पैसा, रोकड़ा, खोखे कहते हैं इसे लोग. अच्छा है कहना चाहिए. सो हाउ वी विल डू दिस? आई विल रीड द नोट्स वंस, then I'll explain them. We'll try to be very clear when we are speaking, but we will be very fast while understanding and finishing this. क्योंकि हमें पता चला है कि ये सब वीडियोस जो हैं आपके काम तो आ रहे हैं लेकिन बड़े बड़े जा रहे हैं आपको, इसीलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ सेविंग योर टाइम हम जल्दी ख़त्म करेंगे. नाउ सो money is organized in order to overcome the difficulties of barter system and has become an important and indispensable element of modern civilization. What we use to pay for things is generally called money. Money performs the following functions: served as a medium of exchange, served as a store of value, served as a measure of value. There are three common categories of money, which are fiat money, commodity money, and the bank money. Fiat money is something the value of which is less than the value it represents as money. For example, the US dollar, Indian rupees, euro, etc. Commodity money is something whose value serves as the value of money. The most common example of community money is gold coins. Bank money consists of checks, demand drafts, etc. that banks extend to their depositors. Bank money implies demand deposit with banks which are withdrawable through drafts, checks, etc. In modern days, checks are widely accepted, particularly for business transactions. Credit cards and debit cards also fall under this category. Money must possess the following qualities. कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, आइडेंटिफाइबल, प्रोबेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, होमोजेनिटी, स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, एक्सेट्रा. Medium of exchange. Money facilitates the buying and selling of goods and services and thus serves as a medium of exchange. It helps in eliminating the need for double coincidence of bonds as under barter system. The measure of value function of money enables us to compare the values of different goods and services. It is also referred to as a unit of value. Money has removed the difficulty of barter system by serving as a common measure of value. Store of value. The store of value of a commodity is something that people use to transfer purchasing power from the present to the future. Along with money, gold, silver, land, house, stamps, etc. are also such assets that can store value. Store of value function of money, which was not recognized by the classical economist. However, Keynes laid stress on this function of money. People generally store money in order to meet any kind of unforeseen contingencies. Standard of deferred payments is another important function of money. Those payments which are to be made in the future are known as deferred payments. Thus, money enables the current transaction to be discharged in future. Since money has the general acceptability as a medium of exchange, it can be easily transferred from one place to another through bank draft, checks, money orders, and other credit instruments. In modern days, internet banking plays a very crucial role in this regard. Money helps in distributing national income of an economy among the factors of production in the form of wage, rent, interest, and profit. When price of the commodity is equal to its marginal utility, a customer derives maximum satisfaction. On the other hand, the condition of maximizing a producer satisfaction, that is profit, is marginal productivity of the factor is equal to price of the factor. In both the cases, money helps in maximizing satisfaction. Money helps the commercial banks to perform the functions of credit creation. The store of value function of money encourages people to save more in form of demand deposits in banks, and such deposits are used by the commercial banks for credit creation. Since money is the most liquid asset, it can be put to different uses without difficulty. It increases the productivity of capital also. Moreover, due to the liquidity of money, capital can be transferred easily from less productive users to more productive users. The classical economists emphasize the transactions demand for money in order to in terms of velocity of circulation of money. According to them, since money functions as a medium of exchange, it facilitates smooth transaction of goods and services in an economy. According to Fisher, the demand for money relates to the amount of money people wish to hold in order to undertake a given volume of transaction over a period of time. Fisher's equation of transaction is symbolically written as MV is equal to PT, where M is the total quantity of money in circulation, V is the transactions velocity of circulation, P is the average price level, and T is the total volume of transaction. According to Fisher's equation, in the short period, changes in the price level are directly proportional to the changes in the
money supply in an economy. The main difference between Cambridge cash balance approach and Fisher's transaction approach is that cash balance theory of demand for money places emphasis on the functions of money as a store of value instead of Fisher's emphasis on the medium of exchange function of money. According to the cash balance approach of Cambridge economists, aggregate demand for money can be expressed as MD is equal to KPY, where MD is the demand for money, Y is the real national income, P is the average price level, PY is the nominal national income, K is the proportion of income people wish to hold in form of cash balances. According to the cash balance approach, any change in the price level can cause an equal proportional change in the demand for money. Keynes emphasized that money can be held as a form of wealth or asset which commands other forms of wealth in exchange. Since money is the most liquid asset, it can serve as an effective store of value. Hence, money is demanded for its own sake. Keynes distinguished three motives which induce people to hold money: the transactions motive, the precautionary motive, and the speculative motive. The main reason for the presence of liquidity trap is that the opportunity cost of holding idle cash balances becomes minimum at very low rate of interest. Money supply is the total stock of money circulating in an economy. It includes currency, notes, coins, money in the deposit account, and in the form of other liquid assets. When a bank grants a loan to a customer, it does not pay cash immediately. Instead, it opens a deposit account in the name of the customer, subject to withdrawal by check as required. Based on this system of granting loans, it is said that every loan creates a deposit. A higher cash reserve ratio will lead to a smaller expansion of credit, and smaller CRR will expand the credit by a larger extent. The Reserve Bank of India follows the following monetary aggregates: M1, M2, M3 and M4. M1 is equal to M1 is also called as narrow money. It includes the following items: M1 is equal to C plus DD plus OD, where C is the currency, notes and coins held by the public, DD is the demand deposits, and OD is other deposits held by the public with the RBI. M2 is an extension of M1. It includes the following items: M2 is equal to M1 plus post office savings deposit. This post office saving bank deposits are less liquid compared to the demand deposits with banks, but they are relatively more liquid than time deposits. M3, besides demand deposits and currency money, ये बहुत important part है. Demand deposits and currency money, M3 includes time deposits as a component of money supply. M3 कौन सा होता है, बहुत जरूरी क्वेश्चन आया था CA में. It is measured as M3 is equal to M1 plus net time deposits of the public with the commercial banks. Interbank time deposits are excluded from the measurement of M3. Only deposits of the public held by the banks are to be included. M4 is considered to be an extended measure of M3 as aggregate money resources of the country. M4 is equal to M3 plus total post office deposits. The total post office deposits include savings and time deposits of the public with the post office, but exclude national savings schemes and national savings certificates. There are two methods of controlling credit: quantitative or general method, and qualitative or selective control method. Quantitative method helps in changing the total volume of credit in general. The rate at which the central bank of the country provides loan to the commercial bank is known as the bank rate. By changing the bank rate, the commercial bank can change the total volume of the credit created by the commercial banks. The buying and selling of securities in the open market by the central bank of the country. When the central bank sells the securities in the market, it leads to the contraction of credit in an economy. On the other hand, when it purchases the securities from the market, it expands the credit. Commercial banks are generally required to maintain two types of reserves. First, cash reserve ratio and the statutory liquid ratio. In case of cash reserve ratio, the commercial banks have to keep a certain portion of their deposits with the central bank in the form of reserve, in the form of cash reserves. Then in statutory liquid ratio, SLR, this is a ratio, this is that portion of the total deposits with the commercial bank which the commercial bank has to keep with itself in form to liquid in the form of liquid assets such as cash, government securities, gold, etc. Unlike the general measures of credit control, the qualitative and selective control methods aim to regulate credit for the specific purposes. These methods include consumer
consumer credit regulations, fixation of margin requirements, rationing of credit, moral succession, and direct control. Value of money generally means purchasing power of money. The buying capacity of money, that is the quantity of goods and services that one unit of money can buy, is considered as the value of money. Marshall used the following equations to express his quantity theory of money. M is equal to KPY, where M is the quantity of money, currency plus demand deposits, P is the price level, Y is the aggregate real income, and K denotes the fraction of real income which people desire to hold in form of liquid money as ready purchasing power. Then Professor Pigou put forward this equation of exchange in the following way. P is equal to, where P is the purchasing power of money, that is the value of money, R is equal to the total resources, and K is the fraction of total income. So P is equal to KR, which people wish to hold in the form of legal tender, and M stands for the total amount of legal tender money stock. Professor Robertson gave the following equation of exchange, which is similar to that of Professor Pigou with a little difference. Professor Roberts' equation is M is equal to KPT, where M is the total quantity of money supply, P is the general price level, T is the total value of goods and services purchased during the year by the community, K represents the fraction of T, that is the total volume of goods and services which people wish to keep in the form of cash balances. Then J.M. Keynes formulated his cash balance equation as an improvement over the Cambridge equation. According to Keynes, people always wish to hold some cash balances, demand for money in order to have day-to-day transactions. Okay. Pigou की इक्वेशन क्या है? P is equal to KR divided by M. Okay, that's very simple. Now let's try to listen. क्या होता है? मनी जो है, पैसा जो है, पहले क्या होता था जब पैसा ऐसा मीडियम नहीं था. इमेजिन करने की कोशिश करो कि आपको किसी को कोई चीज़ देनी है और उससे कोई चीज़ लेनी है, तो आपको उसके साथ बार्टर करना पड़ता था. बार्टर करने का मतलब क्या होता था कि आपको उससे कोई चीज़ देनी पड़ेगी और वो आपको बदले में वो चीज़ देगा जो आपको चाहिए. उसमें बहुत बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज़ हैं. कॉन्सेप्चुअली ही डिफिकल्टी है कि पहली बात तो आपको वो आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वो चीज़ हो जो आपको चाहिए. फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए. फिर आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि जो क्वांटिटी मुझे चाहिए उसके अगेंस्ट वो कितनी क्वांटिटी एक्सेप्ट कर सकता है. फिर उसके वो क्वांटिटी एक्सेप्ट भी करना चाहिए. तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं और इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक मनी का कॉन्सेप्ट ले आया कि अपन एक बीच में करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी कि ये कॉमन रहेगा, ये तुम भी किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ये तुम भी किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो. इसलिए मनी बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा है. मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम करता है और मेजर ऑफ मनी की तरह काम करता है. मतलब वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसी भी चीज़ को करना है, पैसे दे दो सामान ले लो, और इसको पैसे दे दो आप आपका सामान ले लो. आप किसी ने आपको सामान दिया, आप पैसे ले लो उससे और फिर आप सामान से कुछ दूसरे उस पैसे से कुछ और ले लो. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया. स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब आप मनी को स्टोर करके वैल्यू को स्टोर कर सकते हो क्योंकि उस मनी से आप कोई भी वैल्यू अटेन कर सकते हो. उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है? मेजर ऑफ वैल्यू किसी भी चीज़ की वैल्यू अपन मॉनेटरी टर्म्स में निकाल सकते हैं. ये जो है, ये जो डस्टर, इसकी वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं कि ये होगा शायद 20-30 रुपये का होगा. मतलब मॉनेटरी वैल्यू में वैल्यूएशन के काम आता है मनी. ठीक है. 3 कॉमन कैटेगरी होती है मनी की. पहली कौन सी हो गई? फेट मनी, फिर कम्युनिटी मनी और फिर बैंक मनी. फेट मनी कौन सी होती है? फेट मनी वो होती है जिसकी जो वैल्यू होती है, जो उसकी वैल्यू होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू वैल्यू इट रिप्रेजेंट्स. मतलब जैसे कि US डॉलर है, इंडियन रुपीज़ है, तो जो नोट है वो 100 रुपये की वैल्यू बता रहा है, लेकिन वो नोट 100 रुपये में बना नहीं है, वो 2 या 3 रुपये में बना है नोट. उसमें ब्रास और जिंक से मिलकर वो एलॉय से बन गया है, लेकिन जो वैल्यू वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ज़्यादा है. उसे कहते हैं फेट मनी. फिर कमोडिटी मनी. कमोडिटी मनी क्या होता है? हुज वैल्यू सर्व्स एज द वैल्यू ऑफ मनी. जिसकी जो वैल्यू है वो सर्व करती है एज द वैल्यू ऑफ मनी. मतलब जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसकी जो वैल्यू है वो डिराइव्ड वैल्यू है. अब अपन मान लेते हैं कि वही उसकी एक्सचेंज वैल्यू ही उसकी वैल्यू है, डिराइव्ड वैल्यू रहती है उसकी. फिर बैंक मनी. बैंक मनी में क्या क्या आता है? चेक्स आते हैं, डिमांड ड्राफ्ट्स आते हैं, डिस्काउंटेड बिल्स आते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन्स. बैंक मनी मतलब बैंक में जो करेंसी यूज़ होती है, इसे बिजनेसमैन बहुत यूज़ करते हैं. नए नए तरीके के बैंक मनी आता रहता है. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी इसका ही पार्ट है. अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शंस, अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ बैंक मनी के थ्रू और दी जाती है. और मॉडर्न डेज में द ओनली मनी दैट एक्चुअली सर्कुलेट्स इज द बैंक मनी. अब जो पैसा होता है अपना, वो कुछ काम करता है, जैसे कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, अपन ने देखा. फिर वो मेजर ऑफ वैल्यू की तरह काम करता है, जो अनेबल करता है अपने को कंपेयर करने के लिए
डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को उनकी प्राइजेस को कंपेयर करने के लिए और उनकी यूटिलिटी को कंपेयर करने के लिए कि अगर मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मेरे को क्या 100 रुपये का काम मिल रहा है। अगर मैं 1 लाख रुपये किसी को दे रहा हूँ तो क्या वो मुझे 1 लाख रुपये का काम करके दे रहा है, वो मैं मेजर कर सकता हूँ। तो वो वैल्यू मेजर ऑफ वैल्यू की तरह काम करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम करता है। मनी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लैंड हो गया, घर खरीदना, ये सब क्यों होता है? अपन वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं ताकि अपन उसका यूज़ कर सकें जो वैल्यू स्टोर्ड है, और फ्यूचर अनफोर्चुनेट सिचुएशन के लिए अपन अपने पास वैल्यू को स्टोर करके रख सकें। ठीक है, कभी भी वैल्यू को स्टोर क्यों करा जाता है? ताकि कोई भी फ्यूचर अनफोर्सिन कॉन्टिजेंसीज अपने पास अगर आ जाए या अपने ऊपर कुछ हो जाए तो अपने पास एक स्टोर ऑफ वैल्यू रहना चाहिए टू डील विद देम। मेडिकल इमरजेंसी के लिए हमारे घर के बड़े पैसे बचा के रखते हैं, ये उनका बड़पन होता है, यही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, मनी जो होती है उसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी रहती है, उसको ईजिली ट्रांसफर करा जा सकता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। जो बैंक ड्राफ्ट्स है, चेक्स है, मनी ऑर्डर्स है, इंटरनेट बैंकिंग जो है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू इन सबको ईजिली ट्रांसफर किया जा सकता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, फ्रॉम वन होल्डर टू अनदर होल्डर। उसका ओनरशिप चेंज किया जा सकता है क्योंकि ज़्यादातर मनी जो पेपर मनी होता है वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है। बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि जिसने होल्ड करा वो उसके पैसे हो गए। ठीक है, मनी हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग नेशनल इनकम। अब मनी क्या क्या करता है? तो मनी हेल्प करता है इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने में, वेजेस में, रेंट में, इंटरेस्ट में, प्रॉफिट में। अगर आपके पास प्रॉफिट हो रहा है लेकिन आपको वो पैसे बांटने हैं तो आप कैसे मेक श्योर करोगे कि वो सबको मिले? तो आप उसे मनी के थ्रू बांट दोगे। कोई भी चीज़, अब दो लोग हैं किसी भी इकोनॉमी में, एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कैसे होगा मैक्सिमम? जब वो जितने पैसे दे रहा है उसमें जितनी उसको यूटिलिटी मिल रही है, जितना उसको फायदा मिल रहा है, वो दोनों सेम लेवल पे है, तब उसको क्या होगा? उसकी यूटिलिटी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा कस्टमर को। लेकिन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो जितना प्रोडक्शन कर रहा है, जितने पैसे उसको लगे उस यूनिट को बनाने के लिए, और जितने उसको पैसे मिल रहे हैं, मतलब जितने उसने प्रोडक्टिविटी लगाई उसमें और जितना एक्सपेक्टेड उसका प्रॉफिट है, वो दोनों जब सेम रहेंगे तो प्रोड्यूसर को खुशी मिलेगी। और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? कि जितने उसने पैसे दिए और जितनी उसको यूटिलिटी मिली, अगर वो सेम लेवल पे है तो प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दोनों ही सेटिस्फेक्शन को डिराइव करने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को डिराइव करने के लिए मनी का यूज किया जाता है एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। तो मनी सेटिस्फेक्शन डिराइव करने में बहुत हेल्प करता है। दोनों ही मोस्ट कंज्यूमर एलिमेंट्स को ऑफ एन इकोनॉमी, कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर। उसके बाद मनी जो है वो कमर्शियल बैंक्स को हेल्प करता है टू परफॉर्म क्रेडिट क्रिएशन के फंक्शंस। क्रेडिट क्रिएशन के फंक्शंस क्या होते हैं? मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप सोच के देखो, जब बार्टर सिस्टम था तब आप कैसे बोल सकते हो कि मैं तुम्हें आज ये दे दूंगा, तुम मुझे 10 दिन बाद वो दे देना। क्रेडिट पे कैसे काम होगा? कौन सी चीज़ पे डील होगी? डील पे सर्विसेज में होगी कि आप मुझे ये काम करके दे देना, मुझे ये करके दे देना। अभी क्या होता है? लोन का फंक्शन है, बहुत सारे टाइप्स के लोन्स हैं, बहुत सारे टर्म लोन्स हैं। लेकिन ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पास एक कॉमन मेजरिंग टूल है जिसे अपन मनी कहते हैं। मनी असल में सोच के देखो कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, ये हमने खुद कॉन्सेप्ट बनाया है एज ह्यूमन बींग्स। कितना सही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उन्होंने एम्फेसाइज करा द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, in terms of velocity of circulation according to them, since money functions as a medium of exchange facilitates smooth transaction। तो मनी की वजह से स्मूथ ट्रांजेक्शन होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग इक्वेशंस दी हैं। सबसे पहले किसने दी है? फिशर भैया ने दी है। फिशर भैया ने क्या बोला है कि जो मनी है इट रिलेट्स to the amount of money people wish to hold in order to undertake a given volume of transaction over a period of time। मनी क्या है? उतना अमाउंट जो लोग अपने पास होल्ड करना चाहेंगे ताकि एक फोर्सेबल फ्यूचर मैं अपने पास मनी होल्ड करना चाहूँगा ताकि थोड़ा इसको मैं यूज़ कर सकूँ फॉर फोर्सेबल फ्यूचर। और इस टोटल अमाउंट को जो मैं अपने पास होल्ड करना चाहता हूँ उसे कहते हैं मनी। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी है। अब इसने इसको कैसे डिफाइन करा है? MV is equal to PT, where M is the total quantity of money in circulation, V is the transaction velocity, P is the average price level and T is the total volume of transaction। ठीक है, तो जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पूरी इकोनॉमी में उससे मल्टीप्लाई कर अपने जनरल प्राइस लेवल, जितना प्राइस लेवल रहता है, जितना परसेंट प्राइस रहता है टोटल ट्रांजेक्शन का, दैट विल बी इक्वल टू जितनी टोटल मनी है और उसमें जितनी वेलोसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स है। ये फिशर भैया ने बोला। सिंपल बात है, जितना ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितनी डिमांड रहेगी उतना मनी रहेगा मार्केट में। ठीक है, फिशर की इक्वेशन शॉर्ट पीरियड में, इन द शॉर्ट पीरियड चेंजेस इन द, अकॉर्डिंग टू फिशर की इक्वेशन, अगर प्राइस लेवल में चेंजेस हो गए तो मनी के सप्लाई में भी चेंजेस हो जाएंगे। मतलब अगर प्राइस बढ़ गए कमोडिटी के तो मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा क्योंकि उन्हें कमोडिटीज तो वही चाहिए। लेकिन अगर प्राइस कम हो गया किसका?
कमोडिटीज़ का इन दी मार्केट, तो मनी की जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी इकोनॉमी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो मनी का, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मनी का सप्लाई भी बढ़ रहा है, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो मनी का सप्लाई भी कम हो रहा है। ओके, अब जो मेन डिफरेंस है कैम्ब्रिज की कैश बैलेंस अप्रोच में और फिशर के ट्रांजेक्शन में, वो ये है कि थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी एम्फेसाइज ऑन द फंक्शन ऑफ मनी स्टोर ऑफ वैल्यू इंस्टेड फिशर एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कैम्ब्रिज की जो कैश बैलेंस की जो अप्रोच है उसमें वो मनी को कैसे डिफाइन करते हैं कि वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, कि जो वैल्यू आप उससे डिराइव कर सकते हो, उससे उसका जो क्यूमुलेटिव स्टोर है, जो कलेक्शन है, उसे कहते हैं मनी। लेकिन जो फिशर की इक्वेशन है उसमें वो क्या, उसे किस तरह बोल रहा है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब प्राइस से कंपेयर कर रहा है उसको, कि मैं इतना प्राइस पे करूंगा तो मुझे गुड्स मिलेंगे। तो उसका कैम्ब्रिज वाले का क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, कि कितना वैल्यू मैं अपने पास संभाल के रखना चाहूँगा, और फिशर कहता है कितने जो एक्सचेंज वैल्यू है उसको यूज करके उन्होंने डिफाइन करा है मनी को। देन ओके, अब जो कैश बैलेंस अप्रोच है कैम्ब्रिज की, अपन ने फिशर की इक्वेशन देखी, कैम्ब्रिज की अभी तक देखी नहीं, इसलिए आपको समझा नहीं वो जो मैं लास्ट में बोला। अभी सुनो कैश बैलेंस अप्रोच कैम्ब्रिज की, वो डिफाइन करता है मनी को, दैट इज जो डिमांड फॉर मनी है उसको M इज इक्वल टू KPY, वेयर Y इज द नेशनल इनकम, P इज द एवरेज प्राइस लेवल एंड PY इज द नॉमिनल नेशनल इनकम, K इज द प्रोपोर्शन पीपल विश टू होल्ड। सो मनी की डिमांड कैसे रहेगी, जितना इकोनॉमी में टोटल पैसा है उसमें मल्टीप्लाई करा अपने जनरल प्राइस लेवल, तो अपने पास एक जनरली एक्सेप्टेड कितना प्राइस रहता है मनी का, एक बंदे को कितना खर्चा लगता है वो अपने पास आ गया, उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे के को। के क्या है, वो प्रोपोर्शन है इनकम का जो पीपल विश करते हैं टू होल्ड इन फॉर्म ऑफ कैश बैलेंसेस। क्यों, क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन है, फ्यूचर में इसको यूज करा जा सकता है। ये हो गई कैश बैलेंस अप्रोच। इसमें और फिशर में मेन डिफरेंस ये है कि ये एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू है, और वो क्या है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। ठीक है, अभी दो लोग हो गए, एक फिशर हो गया, एक कैश बैलेंस कैम्ब्रिज अप्रोच हो गया। अभी तीसरे भैया है कौन, केनिस भैया। केनिस भैया बोलते हैं कि मनी जो है इट कैन बी हेल्ड एज अ फॉर्म ऑफ वेल्थ और एज असेट, other forms of wealth in exchange. Money is the most liquid asset. It is an effective store of value. Hence money is demanded for its own stake. Keynes distinguished three motives which includes people. तो केनिस ने बोले कि तीन मोटिव हैं जिससे कि पीपल को इंड्यूस किया जा सकता है टू होल्ड मनी, दैट इज द ट्रांजेक्शन मोटिव, द प्रिकॉशनरी मोटिव एंड द स्पेक्यूलेटिव मोटिव। जो मेन रीजन है फॉर द प्रेजेंस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप is that the opportunity cost of holding idle cash balances becomes minimum at a very low rate of interest. Simple. तो तीन ट्रांजेक्शन है, तीन मोटिव है। एक तो ट्रांजेक्शन खर्चा करने के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए कि अगर कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाए तो प्रिकॉशन के लिए मैं स्टोर करके रखूँ वैल्यू को, और एक स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए कि मैं अभी स्टोर करके रखूँगा तो शायद मुझे जो बाद में अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें मुझे ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। तो इन तीन मोटिव की वजह से केनिस बोलता है कि पीपल अपने पास होल्ड करके रखेंगे मनी को। जो मनी सप्लाई है वो असल में होती क्या है, मनी सप्लाई होती है टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, उसे कहते हैं सारी चीज़ें मिला के, करेंसी नोट मिला के, गोल्ड कॉइन्स मिला के, डिमांड डिपॉजिट्स मिला के, डिपॉजिट अकाउंट के पैसे को मिला के, दूसरे लिक्विड एसेट्स को मिला के जो टोटल मनी होता है उसे कहते हैं मनी। ठीक है, जो बैंक होता है वो लोगों को लोन ग्रांट करता है, और लोन ग्रांट करता है जो वो अभी तुरंत रीपे नहीं करता है या रीपेमेंट नहीं मांगता है उसकी, जिसकी वो तुरंत रीपेमेंट नहीं मांगता है, वो कहता है कि मुझे बाद में रीपेमेंट दे देना। एवरी लोन क्रिएट्स अ डिपॉजिट, और हर लोन एक डिपॉजिट क्रिएट करता है, और उस क्रिएटेड डिपॉजिट को बाद में रीपे किया जाता है जिसने लोन लिया है उसके द्वारा, उससे इकोनॉमी और बढ़ती है। तो बैंक्स लोन ग्रांट करते हैं मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट को यूज करके। फिर एक कैश रिजर्व रेशियो होता है, तो जितना ज़्यादा रहता है कैश रिजर्व रेशियो, इट विल लीड टू स्मॉलर एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट। जितना कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, बैंक्स को कहा जाता है कि आप इतना अपने पास कैश रिजर्व करके रखेंगे और बचे हुए कैश से ही आप ट्रांजेक्ट करेंगे। ये किसके पास रिजर्व करके रखना है, या आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना है आपको। ठीक है, तो जितना कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा रहेगा उतना बैंक के पास पैसा कम रहेगा, और उतना कम एक्सपांशन क्रेडिट क्रिएशन बैंक्स कर पाएंगे। ठीक है, जितना सीआरआर कम रहेगा उतना ज़्यादा एक्सटेंट पे क्रेडिट क्रिएशन हो पाएगा। ठीक है, अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मॉनेटरी एग्रीगेट्स के लिए चार मेजर्स को यूज करता है, M1, M2, M3, M4। M1 बहुत शांति सुनो, ये सीए स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। M1 को अपन नैरो मनी भी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग,
नैरो मनी पहला जो M1 है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है करेंसी, उसमें आता है डिमांड डिपॉजिट्स और उसमें आता है ओडी, दैट इज अदर डिपॉजिट्स हेल्ड बाय पब्लिक विद द आरबीआई। क्या क्या आता है इसमें, इसमें करेंसी आती है मतलब नोट्स और कॉइन्स आते हैं, इसमें डिमांड डिपॉजिट्स आता है और इसमें दूसरे डिपॉजिट जो आरबीआई के साथ हैं जनरल पब्लिक के, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ये हैं वो है, ठीक है। उसके बाद M1 हो गया। देन M2 इज द एक्सटेंशन ऑफ M1, इट इंक्लूड्स M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स। दिस is less liquid as compared to demand deposits with the bank, but these are more relatively more liquid than time deposits. तो M2 में क्या है, पहली बात तो M1 पूरा है यहाँ पे, मतलब करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट्स है और अदर डिपॉजिट्स है, प्लस और क्या है इसमें, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट है इसमें। और ये जो पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट है ये क्या होते हैं, जो कम लिक्विड होते हैं, लिक्विड मतलब जिसको रेडिली कैश में कन्वर्ट किया जा सके, तो ये लेस लिक्विड है एज कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट्स और मोर लिक्विड है एज कंपेयर टू टाइम डिपॉजिट्स, ये होगा M2। फिर M2 खत्म, फिर अपन आ गए M3 पे। हियर इट गेट्स ट्रिकी। M3 क्या है, बिसाइड्स डिमांड डिपॉजिट इन करेंसी नोट्स M3 इंक्लूड्स टाइम डिपॉजिट एज अ कंपोनेंट ऑफ मनी। मतलब इसमें डिमांड डिपॉजिट तो है, डिमांड डिपॉजिट M1 में था, M2 में था, करेंसीज भी है इसमें। इसमें और क्या क्या होता है, इसमें टाइम डिपॉजिट्स होते हैं एज अ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। M3 जो होता है, M3 को एक और तरीके से बोला जा सकता है, M3 इज इक्वल टू M1 प्लस द नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। जो नेट टाइम डिपॉजिट्स करे हैं पब्लिक ने किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ, वो अगर M1 में अपन ने प्लस करा तो अपने को M3 मिल जाता है। लेकिन जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन रहती है, इंटर बैंक टाइम डिपॉजिट रहती है, वो एक्सक्लूड कर दी जाती है M3 से। ओनली जो पब्लिक ने हेल्ड करी है, किसी भी जो जनरल पब्लिक ने डिपॉजिट्स हेल्ड करी है, उसे अपन इंक्लूड करते हैं M3 में। अभी M3 हो गया, M3 बहुत ट्रिकी है मुझे पता है। अभी M4, वापस सुनो एक बार उसको। M4 is considered to be an extended measure of M3 as aggregate monetary resources of the country. M4 is equal to M3 plus total post office deposits. The total post office deposits include savings and time deposits for the public with the post office but exclude national savings scheme and national savings certificate. तो इसमें क्या क्या आता है, M3 आता है, पहली बात तो जो M3 में था सब कुछ आता है। फिर टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स भी आते हैं। टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में क्या क्या आएगा, सेविंग्स और टाइम डिपॉजिट आएंगे जो पब्लिक ने पोस्ट ऑफिस से करें। लेकिन क्या नहीं आएगा, तो नेशनल सेविंग स्कीम और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में जितना पैसा पब्लिक ने डाल रखा है वो यहाँ पे M4 में नहीं आएगा, ठीक है। अब बैंक्स करते हैं, आरबीआई करता है, जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। वो कैसे कंट्रोल करता है, दो फंक्शन होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव और जनरल मेथड होती है, या एक क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव मेथड होती है। जो क्वांटिटेटिव मेथड होती है वो हेल्प करती है चेंजिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन जनरल। जो रेट है एट विच द बैंक ऑफ द कंट्री गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक इज नोन एज द बैंक रेट, उसे कहते हैं बैंक रेट, जिससे वो एक सेंट्रल बैंक लोन देती है किसी कमर्शियल बैंक को, आरबीआई किसी HDFC को लोन दे रही है, तो वो किस लोन पे किस रेट पे देगी उसे कहते हैं बैंक रेट, ठीक है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो अपना अगर उन्हें चेंज करना है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, तो वो अपने बैंक रेट को चेंज कर सकती है। अगर उसको बढ़ा देंगी तो लोन कम लेंगे, उनके पास पैसे कम रहेंगे बैंक्स के पास, तो क्रेडिट कम क्रिएट होगा। अगर बढ़ाना है तो रेट कम कर देंगे ताकि क्रेडिट पैसे ज़्यादा रहे और क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट हो, ठीक है। जो बाइंग और सेलिंग होती है सिक्योरिटीज़ में, वो ओपन मार्केट के थ्रू होती है, और जब सेंट्रल बैंक अपने सिक्योरिटीज को सेल करता है, इट लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। ऑन द अदर हैंड, व्हेन इट परचेज द सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट, इट एक्सपांड्स द क्रेडिट। कैसे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, जब बैंक खरीदता है तो उनके पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं और वो क्रेडिट ज़्यादा दे सकते हैं, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होता है क्योंकि उनके पास पैसे ज़्यादा रहेंगे। लेकिन जब बैंक अपना सिक्योरिटीज़ को सेल करता है तो लोगों के पास पैसे कम बचते हैं और क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है। अभी जो कमर्शियल बैंक्स हैं, दे आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेंटेन 2 टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। उनको 2 टाइप ऑफ रिजर्व कमर्शियल बैंक्स को बना के रखने हैं। पहला होता है कैश रिजर्व रेशो और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, वो रेशो, वो अमाउंट, वो परसेंटेज ऑफ द टोटल रिजर्व जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना पड़ता है, उसे कहते हैं कैश रिजर्व, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो क्या होता है, वो रेशो रिजर्व का जो बैंक को रखना पड़ता है कि अगर कोई बंदा कैश विड्रॉ करने के लिए आ गया तो मेरे को उसको देना पड़ेगा,
उसके लिए आपको पैसा रखना पड़ता है, उसे कहते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये दोनों ही रेशियोज अपना सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से बैंक्स का क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट जितना बैंक्स बना सकते हैं वो कंट्रोल में रहता है ऑफ द आरबीआई। Unlike the general measures of credit control, the qualitative or selective control methods aim to regulate credit for specific purposes. These method includes जो जनरल मेजर्स हैं, ये तो ये हो गए CRR, SLR, बैंक रेट्स। अब जो स्पेसिफिक और क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव कंट्रोल मेथड्स हैं जो क्रेडिट क्रिएशन को रेगुलेट करते हैं, वो होते हैं कस्टमर क्रेडिट रेगुलेशन, कितना कस्टमर को क्रेडिट दे सकते हो, फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, आप कितना मार्जिन रख सकते हो किसी भी लोन को देते टाइम, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, जो क्रेडिट आप दे रहे हो उसको रेशन करो, उसको कम ज़्यादा करो, उसका जो रेट है, उसका जो टाइप है वो गवर्नमेंट बताती है, उसे रेगुलेट करती है। फिर मोरल सक्सेशन एंड डायरेक्ट कंट्रोल, मोरल कॉशन एंड डायरेक्ट कंट्रोल। मोरल कॉशन मतलब जो चीज़ सही नहीं है उन्हें आप हटाओ, उन पे इन्वेस्ट मत करो, उन्हें लोन मत दो। और डायरेक्ट कंट्रोल, जैसे कि वीवो एक टाइम पे आईपीएल का स्पॉन्सर बन गया था, नेक्स्ट ईयर उसकी स्पॉन्सरशिप स्ट्रिप कर दी गई क्योंकि वो एक चाइनीज़ कंपनी है। उस वक्त हमारे बॉर्डर टेंशन चल रहे थे चाइना के साथ, तो उसकी मेंबरशिप, उसकी स्पॉन्सरशिप स्ट्रैप कर दी गई थी और फिर टाटा आईपीएल हुआ था नेक्स्ट आईपीएल में। ओके, सो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो असल में होता क्या है? वैल्यू ऑफ मनी जनरली मीन्स द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। कितने 1 यूनिट ऑफ मनी से कितने यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में खरीद सकता हूं, वो हो गई उस मनी के 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, मार्शल, अब तो अभी कितने लोग हैं अपने? 3 लोग हो चुके हैं। फिशर हो चुका है, कैश बैलेंस अप्रोच हो चुका है, केनीज हो चुका है, अभी अपने आगे चौथे मार्शल भैया। मार्शल भैया ने क्या बोला कि उनकी क्वांटिटी थ्योरी में उन्होंने मनी को बोला दैट M इज इक्वल टू KPY, वेयर M इज द क्वांटिटी ऑफ मनी, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, P इज द प्राइस लेवल। सो अपन मार्शल भैया पे थे। मार्शल भैया ने बोला कि मनी जो होता है उसे क्वांटिटी, उसने अपनी क्वांटिटी थ्योरी बताई ऑफ मनी, वेयर उसने मनी को बताया क्वांटिटी ऑफ मनी दैट इज द करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स का जो टोटल है दैट विल बी इक्वल टू KPY, वेयर प्राइस इज द P is the price level, Y is the aggregate real income, K denotes the fraction of real income which the people desire to hold in form of liquid assets। कुछ नहीं, जितना इनकम है उसमें से जितना प्राइस लेवल है, मतलब जनरल ट्रांजेक्शन कितने होते हैं, उसमें Y एक प्रोपोर्शन को उसने मल्टीप्लाई कर दिया, उसने बोला कि और Y वो पोर्शन है जितना लोग अपने पास होल्ड करना चाहते हैं और जो उससे वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी मनी। सिंपल, नथिंग ग्रेट। चौथे आ गए, अब अपन ने पांचवें आए प्रोफेसर पिगू। उन्होंने बोला कि जो मनी है वो कैसे रहेगा, P इज इक्वल टू KR डिवाइडेड बाई M। R क्या है यहाँ पे? टोटल रियल रिसोर्सेज और रियल इनकम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी एंजॉयड बाय द सोसाइटी एट एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। R वो हो गया। K इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल रियल इनकम R विच पीपल विश टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर, दैट इज कैश बैलेंस। एंड M stands for total amount of legal tender, that is money stock. So and P is the purchasing power। तो मिस्टर पिगू ने भी परचेसिंग पावर के फॉर्म, परचेसिंग पावर क्या थी कि 1 यूनिट के लिए ऑफ मनी देने का अपने कितने यूनिट ऑफ दूसरी चीज़ अपने को मिल जाएगी। तो इन्होंने कैसे बोला कि परचेसिंग पावर ऑफ मनी क्या रहेगी, जितने भी रिसोर्सेज हैं या जो रियल इनकम है मल्टीप्लाइड बाय वो फ्रैक्शन ऑफ नेशनल इनकम विद द पीपल विश टू होल्ड, उसको डिवाइड करा बाय द टोटल अमाउंट ऑफ लीगल टेंडर, मनी स्टॉक जितना भी उसको डिवाइड करा तो आपको मिल जाएगी परचेसिंग पावर, और वो परचेसिंग पावर ही मनी रहेगी। दैट परचेसिंग पावर विल बी मनी, ऐसे उसने बताया। फिर अपने छठवें आ गए प्रोफेसर DH रॉबर्टसन। प्रोफेसर DH रॉबर्टसन ने जो इक्वेशन दी वो उन्होंने इस तरह से दी कि उन्होंने कहा कि M इज इक्वल टू PKT, M is equal to PKT and P is equal to M divided by KT, where M is the total quantity of money supply, P is the general price level, T is the volume of goods and services purchased during the year, and K represents the fraction of T which the people wish to keep in the form of cash balances। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म पे उन्होंने क्या करा था, परचेसिंग पावर के फॉर्म में किया था, यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मनी सप्लाई कैसे पता चलेगी अपने को, कि जो टोटल क्वांटिटी है, जो टोटल वॉल्यूम है गुड्स और सर्विसेज के जो परचेस होते हैं किसी भी साल में, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करो विद द जनरल प्राइस लेवल, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करो विद वो फ्रैक्शन जो पीपल विश टू
विश टू होल्ड इन फॉर्म ऑफ कैश बैलेंसेज, उससे जो अपने को पैसे मिलेंगे, उससे मिल जाए, उससे जो क्वांटिटी मिलेगी, दैट विल बी द मनी सप्लाई, दैट विल बी द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक, देन लास्ट में आया अपने पास केनीज भैया। केनीज भैया ने क्या बोला, JM केनीज, उन्होंने बोला, उन्होंने कैश बैलेंस इक्वेशन अपनी बनाई। कैम्ब्रिज इक्वेशन जो थी ना, कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच, उससे इंप्रूव करके उन्होंने अपनी कैश बैलेंस इक्वेशन बनाई और उन्होंने बोला कि पीपल हमेशा कुछ ना कुछ पैसे होल्ड करने की डिजायर रखेंगे, कोई रीजन हो या ना हो, सिर्फ डे टू डे ट्रांजेक्शन करने के लिए। स्पेकुलेटिव रीजन नहीं है, प्रिकॉशनरी रीजन नहीं है, जस्ट ट्रांजेक्शन करने के लिए हम कुछ ना कुछ पैसे अपने पास होल्ड करके रखेंगे। उसे वो JM केनीज ने बोला। तो उन्होंने क्या इक्वेशन बनाई JM केनीज ने, उन्होंने बनाई कैश बैलेंस अप्रोच, जिसे कहते हैं P इज इक्वल टू N/K, where P is the price of the consumption unit, N stands for the quantity of money in circulation, and K denotes the amount of consumption units which the community holds in form of cash. Price, P is equal to the price, N is the quantity of money in circulation, और K is the amount of consumer units which the community holds in form of cash. मतलब जितनी क्वांटिटी है मनी की, उसको डिवाइड करा आपने बाय द कंजम्पशन, अमाउंट ऑफ कंजम्पशन यूनिट्स, कितने यूनिट्स कम्युनिटी कंज्यूम करती है, उससे अपने को एक यूनिट की प्राइस मिल जाएगी, तो वो हो गई प्राइस। एंड दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट इफ K रिमेन्स कॉन्स्टेंट, चेंज इन N मे कॉज चेंज इन P। मतलब अगर जो क्वांटिटी है मनी की वो चेंज हो गई तो प्राइस चेंज होगा, प्रोवाइडेड के जो अमाउंट है जो लोग होल्ड करना चाहते हैं वो कांस्टेंट रहे। केनीज ने अपनी इक्वेशन को एक्सटेंड करा और उसने मनी सप्लाई को बताया एज ओके, इफ K एंड K डैश एंड K आर कांस्टेंट, अगर किसी भी इकोनॉमी में आपको चेंजेस करने हैं, मनी जनरल प्राइस लेवल को चेंज करना है या कंट्रोल करना है, तो आप अपने कैश रिजर्व रेशो में, क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन में, और कंजम्पशन यूनिट का जो अमाउंट है कम्युनिटी में जो लोग होल्ड करना चाहते हैं बैंक डिपॉजिट, उसको अगर आप चेंज करोगे तो आपकी मनी सप्लाई चेंज हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड मनी। सी यू इन चैप्टर 2।